जब मैं रैपिड रिवीजन पे शिफ्ट हुआ तो सडनली बिल्कुल बूस्ट अप हो गया 55% 60% तक मेरे मार्क्स आने लगे। तो इससे ये पता चलता है कि हमें लिमिटेड चीजें पढ़ने होती हैं। Hello guys, myself Zakaria Alamwale. So today we will talk with Dr. Lalit sir who cleared his FMG with outstanding performance, 174 marks in the first attempt. So let's see. Hello sir, first of all very congratulations to you and your family for your biggest achievement. Your biggest achievement that you cleared your FMG exam in first attempt. Thank you so much, Zakaria. Thank you so much. And yeah, it's an achievement, and my family members are very much happy, and as well as me. And they have behind it a lot of hard work and sacrifices are there. Yes, And sir. thank you. Yes, sir. Yes, sir. So yes, sir. Let's do some conversation like how you passed FMG and all your struggles. And can you say anything about your last year, sir? When you was last year in university, how was your daily routine? Initially, I was very much serious and very much worried कि नीट पीजी में नीट यूजी मेरा हुआ नहीं था। एंड फिर मैं बहुत सीरियस था, तो इनिशियली तो मैं बहुत पढ़ाई वढ़ाई करता था। फिर थर्ड फोर्थ ईयर में आकर के थोड़ा सा स्टडीज वगैरह कम, मैंने लास्ट 2 इयर्स में ही प्रिपरेशन शुरू कर दिया था। ठीक है, आई स्टार्टेड इट and my study was like first of all I started with full lectures, and then I shifted, when 6 months were remaining I shifted to rapid revision। एंड मेरा शिफ्ट वाइज स्टडीज होता था, पहले मॉर्निंग की स्टडी, फिर थोड़ा ब्रेक मतलब खाना वाना खाना है, थोड़ा मैं सोता भी था। डेफिनेटली आफ्टर लंच के बाद स्लीप वाज नेसेसरी फॉर मी बिकॉज आई यूज्ड टू फील फ्रेश। तो वो फ्रेशनेस नहीं तो वो आउटपुट नहीं आ पाता, फिर मेरे लिए वो कंपल्सरी। तो फिर दोपहर की स्टडी होती थी वही 3 to 4 आवर्स, और उसके बाद फिर वही रात का शिफ्ट 3 to 4 आवर्स का। तो अराउंड 8 to 12 आवर्स की स्टडी मेरी जनरली होती थी लास्ट के जब 6 मंथ बचे थे। Then how much syllabus you completed, how much subject you completed in last year's, means before first attempt, means when you passed out from here Jalalabad? When I completed my MBBS, during that time as I started in 5th year only, so I completed my all the subjects 2 times almost। I started in 5th year only, that time corona was going on, right? So in holidays I completed 1 time and some subjects were remaining, and 1 more time I completed when I came to college in 6th year। So almost I completed the whole syllabus। But yeah, completed doesn't means I was getting 70% or 80% marks. No, it was not like that. I mean that time I was, to be frank, I was getting 40 to 42% I was getting, and then in remaining 6 months I shifted to completely on rapid revision। That like means that you are so confident about that you can give exam। हाँ, मतलब 6 months were remaining, and initially when I started in 5th year I was getting 30%। Then I started getting 42%। Then there was a confidence, yes, soon it will be increasing, keep on increasing। And actually the thing was, see, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब मैं फुल सिलेबस पढ़ रहा था मैं 40% आ रहा था, और जब मैं रैपिड रिवीजन पे शिफ्ट हुआ तो सडनली बिल्कुल बूस्ट अप हो गया 55% 60% तक मेरे मार्क्स आने लगे। तो इससे ये पता चलता है कि हमें लिमिटेड चीजें पढ़ने होती हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो पहले फुल सिलेबस डेफिनेटली वी शुड गो ऑन एट फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड देन definitely shift to rapid revision and ultra rapid revision like that। Then sir, how to do rapid revision means making all notes, further notes and revising that notes, और दूसरी नोट्स बनानी चाहिए या उसी नोट्स को रिवाइज करनी चाहिए अपने? See, अगर handwritten notes if you already have made time also, and it depends upon your comfort zone also। Like sometimes what we do, we used to prepare one subject and we write notes also, and we are much comfortable with that particular subject, so you can carry on, no need to shift on rapid revision, because handwritten notes are like something वो different kind का comfort zone देता है हमें पढ़ने में। तो अलग रिवीजन पे शिफ्ट होने की जरूरत नहीं है। बट या मतलब क्या है कि हर चीज का इतना अच्छा नोट्स हमारे पास इतना कंफर्ट जोन वाला प्रिपेयर होता नहीं है। तो रैपिड नोट्स जो है ऑलरेडी कई ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, आजकल हर इंस्टीट्यूट के रैपिड रिवीजन नोट्स अवेलेबल हैं। तो वो नोट्स प्रिंट निकालो और उसमें वी शुड ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, मतलब कि थोड़ा टाइम वाइम बच जाए नोट्स वगैरह बनाने में। बट या स्टिल 15-20 पेजेस के हमें शॉर्ट नोट्स तो चाहिए ताकि हम एग्जाम के टाइम पे रिवाइज कर सकें। Yes sir। Then which coaching you joined sir after passing out here?
सी मैं कोचिंग वगैरह तो मैंने कुछ भी नहीं लिया था, मैंने सारी तैयारी आई डिड इट बाय माय सेल्फ, Yes, very क्योंकि very nice. टू बी फ्रैंक मतलब शायद किसी को बुरा भी लग जाए, मुझे नहीं पता, बट बोलना ही पड़ेगा मुझे। कोचिंग का जो ये जो पैटर्न है ना, मुझे पसंद नहीं है। ये सुबह से 8 बजे जाके रात के फिर से 8 बजे आना, मतलब 8-9 बजे शुरू होता है यूजुअली, Yes, sir. और वो 8-9 बजे फिर खत्म होता है। तो मतलब देन आई कंप्लीट इट आफ्टर द क्लास एट नाइट। और हम वहाँ हॉस्टल डेज में थे, और अभी भी इवन खाना वाना एंड ऑल दैट बहुत कुछ सोचना पड़ता है। तो वो सारी चीजें फिर कैसे होगी, इट विल बी मच मोर डिफिकल्ट। तो मतलब ये पैटर्न थोड़ा सा मुझे पर्सनली कंफर्टेबल फील नहीं होता है, क्योंकि मेरे Our choice. टेकिंग 5 डेज टीच समथिंग, तो एक दिन आप और बढ़ा दो, ऑटोमेटिकली 4 या 5 बजे आप छोड़ दो बच्चों को। मैं ये चाहता हूँ, तो थोड़ा सा टाइम मिलेगा, फ्रस्ट्रेशन कम होगा। 8-9 बजे बच्चा जाएगा तो सेल्फ स्टडी कब करेगा? क्योंकि वन थिंग इज वेरी मच क्लियर कि टीचर्स जो है ना, वो बिल्ड कर रहे हैं बेसिक्स, यू नो, Very nice. बट जो हमारा एग्जाम क्लियर करवाएगा ना, दैट विल बी आवर सेल्फ स्टडी, और वो हमारा रिवीजन करवाएगा। Daily. टीचर तो क्या है, हमारे लिए सिलेबस को इजी कर रहे हैं, वो हमारा क्लियर नहीं होगा, क्लियर होगा प्लस हमारे आउटपुट लगाने पड़ेंगे रिवीजन से, और वो हम करने का जब टाइम ही नहीं मिलेगा तो फिर कैसे होगा? तो ये, और हाँ, टीचर्स के गाइडेंस आई वाज गेटिंग फ्रॉम यूट्यूब, फ्रॉम माय यूनिवर्सिटी आल्सो, दैट गाइडेंस आई वाज गेटिंग फ्रॉम एवरीबॉडी। What about the mock test? You had done mock test from online platforms or what? You या used मॉक any टेस्ट वेरी hard नेसेसरी। copies like FMG solution or what? मॉक टेस्ट मैंने एफएमजी सॉल्यूशन के नहीं किए थे, आई टुक इट फ्रॉम अराइज, मतलब मैंने बाय नहीं किया था, वो 3 मॉक टेस्ट फ्री के मिले थे एज जलाला, सो यू नो कनेक्टेड विद अराइज। तो अराइज टेस्ट हमें फ्री में मिले थे, तो आई डिड इट। तो मैंने 3 मॉक टेस्ट किए। फर्स्ट मॉक टेस्ट में आई गॉट 172, सेकंड आई गॉट 152, और थर्ड मॉक पेपर 1 दिया था, तो आउट ऑफ 150 आई गॉट 72 मार्क्स। There are some rumors like FMG students, the abroad MBBS students are not very well as like Indian graduate. सी इफ आई स्टार्ट टॉकिंग, मतलब ये थोड़ा सा यू नो डिफिकल्ट है मेरे लिए भी, बट सिंपल शब्दों में कहूँ तो यार, डिफरेंट तो नहीं होना चाहिए। पता नहीं व्हाई पीपल फील लाइक दिस। सी यहाँ के जो ग्रेजुएट्स हैं, इंडियन ग्रेजुएट्स, वो अपना जो एग्जाम है वो पहले कंप्लीट करते हैं, नीट यूजी, और उसके बाद उनके यू नो दे गेट एडमिशन, एंड व्हाट वी डू, वी गेट फर्स्ट कॉलेज, वी डू आवर कॉलेज, एंड देन वी गेट गिव द एग्जाम, एंड देन वी पास इट। सो इतना ज्यादा यू नो एग्जाम तो हम भी दे रहे हैं, हम भी वी आर आल्सो प्रूविंग आवरसेल्फ, तो ये डिफरेंस कुछ है नहीं। और दूसरी चीज, मेडिसिन इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ आवर एमबीबीएस, हाउ मच वी आर प्रैक्टिसिंग, दैट मच नॉलेज, दैट मच स्किल्ड वी विल बी। सो इट्स सिंपल। तो ये स्किल तो अपने आप आता जाएगा धीरे धीरे। Yes. और वन इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा, ये जो यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिना किसी डिग्री और बिना किसी डिप्लोमा के ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और मैं बता दूं कुछ लोग अच्छे भी हैं, अच्छा ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो, ठीक है, मैं उनकी तारीफ नहीं कर रहा, Yes, sir. मैं उनकी तारीफ नहीं कर रहा, बट अच्छा, तो मतलब मैं कंपेयर करने के लिए, ताकि आप समझ पाओ वो बिना पढ़ाई के इतना अच्छा कर सकते हैं। तो हमने FMG स्टूडेंट क्यों नहीं कर सकता? कुछ तो पढ़ा होगा हमने, बिल्कुल सर। सिंपल क्लियर है बिल्कुल ये। Yes sir, yes sir. We can remove this tag of FMG student by clearing our exam and all our after our PG exam and that all. You will be equivalent to them also. हाँ डेफिनेटली, और कागजों में तो ऐसा कुछ भी डिफरेंस है नहीं, एवरीबॉडी नोज इट, बिल्कुल ठीक है, कागजों में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा होता कि वो बाहर से आया है, ये इंडियन ग्रेजुएट है, ऐसा कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो नेक्स्ट भी होने जा रहा है, यू नो एवरीथिंग क्लियर, अभी तो सबको एग्जाम देना पड़ेगा। Yes sir. Your further suggestion for your juniors like me and other. सजेशन मैं यही दूंगा कि मतलब यार, स्टार्ट योर स्टडीज, बी सीरियस फॉर योर लाइफ, कि मतलब ये पेरेंट्स ने लास्ट चांस है लाइफ में जो हमें दिया है, ठीक है। कहीं ना कहीं इंडिया में हमने किसी भी रीजन, कुछ भी रीजन हो सकता है, अलग अलग रीजन होते हैं, हम नहीं कर पाए तो अभी बाहर गए, अब ये लास्ट चांस है हमारे पास, और एज भी हो रही है, बहुत सारी चीजें हैं, तो एवरीबॉडी स्टार्ट, बी सीरियस। और बाकी कुछ पर्टिकुलर है पढ़ाई को लेकर के, वो ये कि नोट्स वगैरह जो है वो चेंज ना करें, बी वन नोट्स वन सोर्स। और दूसरी चीज कंसिस्टेंट बने, कंसिस्टेंट इन द सेंस कि सपोज अगर मैंने एक ही दिन में 15 घंटे की स्टडी कर ली, और फिर नेक्स्ट डे मैं किया ही नहीं, 8-10 दिन फिर गैप, हाँ, और फिर 15 दिन के बाद बैठा, तो सोचो मंथ में कितना स्टडी हो गया, वो लगभग 30 आवर्स या 40 आवर्स होगा। बट सपोज करो मैं 3 to 4 आवर्स डेली बैठ रहा हूँ, और कंसिस्टेंसी मेंटेन है 30 डेज के लिए 120 आवर्स, Yes sir. तो वो पोटेंशियल जो है, कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। कम करो बट कंसिस्टेंट रहो, Yes sir. तो Consistency matters. कंसिस्टेंसी रहेगी, और फिर स्टिक करो एक ही नोट में,
और बाकी सबसे चीज रिवीजन, जो मैंने पहले भी कहा, बिल्कुल रिवीजन, बस ये 3 चीजें रहेगी ना तो ऑटोमेटिकली इट विल बी। यस सर। देन योर फर्दर प्लान्स फॉर पीजी? पीजी यार, पीजी का प्लान तो अभी कुछ ऐसा है नहीं, मतलब पहले तो हम फाइट करेंगे इंटर्नशिप के लिए, क्योंकि इंटर्नशिप कई लोगों को मिल नहीं रही है, स्पेशली मैं गाजियाबाद का हूँ फिलहाल, अभी गाजियाबाद में माय फैमिली इज सेटल्ड, अच्छा। तो वी ट्राई माय इंटर्नशिप टू गेट इन दिल्ली और आइदर इन यूपी गाजियाबाद। सो देखते हैं, यहाँ मिल जाए तो यहाँ बहुत भीड़ है एज यू ऑल नो, तो पहले तो इंटर्नशिप के लिए फाइट है। Which issue you और are facing for internship, sir? Can you explain here? इंटर्नशिप के लिए इशू ये है कि एक्चुअली भीड़ बहुत ज्यादा है। सबसे पहला रीजन तो ये है कि सभी प्रिपरेशन यही करते हैं, यू नो एवरीबॉडी यूज्ड टू प्रिपेयर हियर, तो यहाँ पे भीड़ ज्यादा है, तो प्रिपरेशन के टाइम पे यू नो यहाँ पे सीट वगैरह वैकेंट इतनी ज्यादा होती नहीं, सब यही करना चाहते हैं, तो इसलिए बाकी यू नो गवर्नमेंट के अपने इश्यूज हैं, कुछ नया रूल्स भी आया है अभी नेक्स्ट आने वाला है, और फिर अभी वाला इंटर्नशिप वाला भी वो चल रहा है कंफ्यूजन, तो इन सब चीजों की वजह से यू नो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में कुछ शायद आपस में यू नो कॉम्बिनेशन वो सही हो नहीं पा रहा है, फिर यहाँ के जो ऑफिसर्स हैं जो उनका फिर अलग है, उस चीज को कैसे कन्वे करते हैं वो जो मैसेज रिलीज हुआ है, Yes, sir. तो इन सारी चीजों में कंफ्यूजन है, धीरे धीरे आई होप इट विल बी क्लियर्ड। Yes. बट हाँ, मैं जहां तक मैंने सुना है, मैंने ये सब एक्सपीरियंस तो नहीं किया है, बट एज आई लिसन फ्रॉम माय सीनियर्स कि अपने अपने जो यू नो डोमिसाइल स्टेट्स हैं वहां इतना ज्यादा इश्यू नहीं है, इतना ज्यादा भीड़ नहीं है, यूजुअली थोड़ी बहुत मेहनत के बाद मतलब थोड़ा टाइम लगता है फिर मिल जाता है। अभी आपने पढ़ाई मींस स्टॉप कर दी है या कंसिस्टेंसी बनी है? नहीं, अभी तो यार मतलब सीनियर्स ने भी यही कहा और मेरे को पढ़ने का मन है, अभी तो मतलब समझ लो वो हाई टाइम चल रहा है, एंजॉयमेंट वाला डोपामाइन फुल लेवल्स एंजॉय। हाई है अभी। हाँ बिल्कुल, अभी तो एकदम मस्ती चल रही है बस, और इवन सीनियर्स ने भी यही कहा कि जब तक तुम्हारा वो पासिंग सर्टिफिकेट ना आ जाए, क्योंकि पासिंग सर्टिफिकेट के बाद फिर यू नो कुछ स्टेट मेडिकल काउंसिल में जाके वो एप्लीकेशन वगैरह देना, डॉक्यूमेंट्स के बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन है, तो उन सब में टाइम जाएगा, तो उस टाइम पे स्टडी हम शुरू कर सकते हैं ताकि इंटर्नशिप में भी थोड़ा बेनिफिशियल होगा। अभी तो 1 मंथ कंप्लीट रिलैक्स करो। Very nice, sir. बस पार्टी और पूरा फ्रस्ट्रेशन निकालना 6 साल का। क्योंकि यार मतलब बहुत हैक्टिक हो जाता है यार, इट्स टू मच, इतना आसान नहीं बहुत है। बड़ी अचीवमेंट है सर, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना मींस ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए भी कि हमारे सीनियर्स ऐसे भी है हाँ, कि ये फर्स्ट भी अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं। इतना क्योंकि डिफिकल्ट गौतम भी नहीं नगर है, का क्या हाल है सब सर, दिल्ली में गौतम नगर का क्या हाल है सभी को पता है वर्ल्ड वाइड, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स डे बाय डे कंसिस्टेंसी मतलब बढ़ते जा रही है तादाद बच्चों की जो क्लियर नहीं हो रहे, और अपनी यूनिवर्सिटी भी इससे भी इस बार बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, 110 प्लस आया है। ये चीजें चेंज हो रही है, लेकिन देखो इस बार आई थिंक 30 to 40% रिजल्ट रहा है, और आगे भी ये होपफुली और ऊपर जाएगा, लोग मेहनत कर रहे हैं, अब चीजें चेंज हो रही है, ऐसा नहीं बदल रहा है, और धीरे धीरे होगा, इतना टफ भी नहीं है, मतलब टफ है, थोड़ी मेहनत थोड़ा सीरियसनेस तो जरूरी है, लेकिन इतना भी नहीं है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मतलब जो थोड़ी मेहनत करेगा ही विल क्लियर इट। Yes, sir. So, sir, thank you so much for giving your precious time. थैंक यू सो मच टू द ज़करिया, आई शुड थैंक यू बिकॉज मतलब तुमने ऐसा प्लेटफॉर्म दिया, और ताकि मैं यू नो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकूं इन द क्वेश्चन फॉर्म Sir, स्पेशली। it's my pleasure. Thank you so much. Let's meet in India, inshallah, in your internship. Yeah, sure, all the very best to all your viewers, all my juniors and everyone, including you also. Thank you so much, sir.